اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی، تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی۔ سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چل نکلی، اور وہ سب یہودا کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستہ پر ہو لیں۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آج ہم کرسمس کے میسج کو سن رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں ایک اداسی کا تاثر آ رہا ہے۔ نومی ایک عورت ہے جو بیت لحم میں رہتی ہے، اس کا خاندان، اس کے لوگ بیت لحم میں رہتے ہیں۔ اس کے شوہر کا نام کیا ہے؟ علی ملک۔ یہ الف سے ہے، عین سے نہیں ہے۔ اس کے شوہر کا نام علی ملک ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام کیا ہے؟ محلون، اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ کلیون۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب بیت لحم میں ہے، یہودیہ کے علاقہ میں ہے، تو وہاں اس سرزمین پر کال پڑا ہے، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم بیت لحم کو چھوڑیں گے اور کہاں جا کر بسیں گے؟ مواب کے ملک میں۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو یہ واقعہ بھی یاد ہو جائے۔ کہاں رہیں گے ہم؟ مواب کے ملک میں۔ سو یہ بیت لحم سے اٹھے ہیں اور مواب کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے، چل پڑے ہیں۔ مواب میں پہنچے، وہاں پر رہنا شروع کیا، اور یوں ہوا کہ نومی کا شوہر علی ملک مر گیا۔ یہ عورت بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے دو بیٹے ہیں اور دونوں نے اپنے اپنے لیے ایک ایک عورت بیاہ لی۔ سو بڑی کا نام عرفہ ہے اور چھوٹی کا نام کیا ہے؟ روت۔ اور روت کے نام سے ہی یہ بک لکھی گئی ہے۔ اس کا آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ سو اب دونوں بیٹے بھی اس عورت کے مر گئے ہیں اور اس کا شوہر بھی مر گیا ہے، اور کریکٹر کون سا ہے جی؟ نومی۔ نومی کا ہسبینڈ علی ملک مر گیا، اس کے دونوں بیٹے مر گئے، اب تین عورتیں ہیں اور تینوں ہی بیوہ ہیں۔ سو اب نومی نے جب اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا تو اسی ڈیورنگ اس نے یہ سنا کہ بیت لحم میں اب خدا نے اپنے لوگوں کو کیا دی ہے؟ روٹی دی ہے۔ سو اس نے ارادہ کیا، اس نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کہاں پر جانا چاہیے؟ واپس بیت لحم جانا چاہیے۔ سو یہ چل پڑی اور اس کی دونوں بہویں بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ سو آگے جو حوالہ، جو آیات نہیں پڑھی گئی، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب یہ نکلی ہیں تو دونوں بہویں جو ہیں وہ اس کے ساتھ نکلی، لیکن اس کی ساس نے ان کی یعنی روت کی جو ساس ہے، اس نے منع کیا اور ان کو مشورہ دیتی ہے کہ اے میری بیٹیوں، اپنے اپنے مائکے واپس کیا کرو؟ لوٹ جاؤ۔ سو دونوں عورتیں باضد ہیں کہ نہیں، ہم اپنی ساس کے ساتھ بیت لحم جائیں گے۔ لیکن ساس نے آگے یہ کہا کہ میرے اگر اور بیٹے ہوتے تو میں ان کے ساتھ تم کے بیاہ دیتی تو تمہارے رہنے کی کوئی وجہ بنتی۔ اور لکھا ہے کہ دیکھ، میں اب بڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں، اور اگر آج کی رات میرا شوہر بھی میرے پاس ہوتا اور میرے بیٹے ہوتے تو کیا تم انتظار کرتی کہ وہ جوان ہو اور تم ان کے ساتھ شادی کر لیتی؟ سو اے میری بیٹیوں، اپنے اپنے کنبے میں واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ میرا تو اب کوئی رہا نہیں۔ سو لہذا تم اپنے قبیلے میں، اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں واپس لوٹ جاؤ۔
सो दोनों औरतें जो बहुएं हैं ये बज़िद हैं कि नहीं हम तेरे साथ जाएंगी, और सास इनकी मिन्नत कर रही है कि आप वापस क्या करो, अपने घरों को चली जाओ। सो इनमें से जो उर्फा है वो अपनी सास की बात मान लेती है और वो वापस अपने कुंबे में, अपने देवता के पास, अपने घराने में लौट जाती है। लेकिन रूथ जो है वो अपनी सास के साथ लिपटी रहती है, और रूथ अपनी सास से ये कहती है कि तू मिन्नत ना कर, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और अगर मैं तुझे छोड़ूं तो खुदा इससे भी ज्यादा बुरा मेरे साथ करे। सो रूथ ने एक फैसला किया कि वो कहां जाएगी, अपनी सास के साथ बैतलहम में। कहां जाएगी? बैतलहम में जाएगी। सो रूथ अपनी सास के साथ लिपटी नहीं, इसने फैसला किया और फैसले पे मजबूत रही, क्योंकि फैसला तो उर्फा ने भी किया कि मैं तेरे साथ जाऊंगी, लेकिन जब उसको बात समझ में आई अपनी सास की तो वो तो अपने मेके में वापस चली गई, लेकिन रूथ अपनी सास के साथ बैतलहम को उसके साथ चली गई। सो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो इलाकों का बार बार जिक्र हो रहा है। एक है बैतलहम, और रह कहां पर रहे हैं? मोआब में। कहां पर रह रहे हैं? एक मोआब का इलाका है और एक बैतलहम का इलाका है। सो बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। बैत का मतलब होता है घर, और लहम का मतलब क्या होता है? रोटी। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, लेकिन इसके बरक्स अगर आप सर्च करें और इसको आप देखें तो मोआब पर कर्ज की गई थी, कामरान भाई, और कर्ज के पीछे एक बड़ा वाकया मौजूद है। अगर आप पैदाइश की किताब में इसको स्टडी करें तो वहां पर एक करैक्टर है जिसका नाम है लूत, जो अब्राहम का भतीजा था। और जब सदूम और अमूरा के अंदर बदी इस कदर बढ़ गई कि खुदा ने उनकी बदी को देखकर वहां पर आग और गंधक बरसाई, तो ये लूत वहां पर रहा करता था। सो अब्राहम के पास फरिश्ते आए, और फरिश्ते कहां पर गए? सदूम और अमूरा में, और अब्राहम से ये कहते हैं कि हमने जो सदूम और अमूरा की शरारत है, जो उनकी बदी है, ये खुदा तक पहुंची है, और खुदा इससे मालूल है, खुदा इससे नाराज है, और खुदा इससे गजबनाक है। खुदा इस इलाके को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। अब वहां पर अब्राहम का भतीजा लूत मकीन है, और जो जिसकी दो बेटियां हैं, एक बीवी है, वो वहां पर रह रहे थे। लेकिन जब ये फरिश्ते वहां पर भी गए तो वहां के लोगों ने इनके साथ बदफेली करने की कोशिश की, इन फरिश्तों के साथ। लेकिन जो लूत था, लूत ने इन फरिश्तों को, जो 3 बुजुर्ग अब्राहम के पास आए थे, उनको अपने घर में पनाह दी। सो वहां उस वजह से लूत को उस इलाका के अंदर से बाहर निकाल दिया गया, और लूत वहां से निकला, इसकी 2 बेटियां निकली और इसकी बीवी इसके साथ निकली। और फिर ये हुआ कि इसकी बीवी जो है लूत की, वो पीछे मुड़कर देखती है, और वो क्या बन गई? नमक का सतून बन गई। अब पीछे करैक्टर क्या बचा है? लूत और उसकी दोनों बेटियां। ये बाइबल मुकद्दस का वाकया है, इसको समझिएगा और इसको आप दूसरे मायने में ना लेके जाइएगा। जब लूत निकला है तो इसके साथ इसकी दोनों बेटियां हैं, और ये एक गार में जाकर रहना शुरू हुए। और इसकी बेटियों ने, लूत की बेटियों ने ये सोचा कि दुनिया के ऊपर अब कोई बंदा, कोई मर्द और नहीं रहा, और ना कोई औरत रही, क्योंकि खुदा ने आग और गंधक बरसाई है, और वो सारा इलाका क्या हो गया है? तबाह बर्बाद हो गया है। अब इन्होंने खुद से ख्याल किया कि हम अपने बाप के लिए नस्ल पैदा करेंगे। याद रहे, बहुत से लोग लूत को नबी समझते हैं, लेकिन लूत एक रास्तबाज इंसान था, लेकिन नबी नहीं था। ये याद रखिएगा बात। इन दोनों लड़कियों ने ये सोचा कि हम अपने बाप के लिए नस्ल पैदा करेंगे। सो पहली रात बड़ी बेटी ने अपने बाप को मैं पिलाई, और वो इस कदर नशे में हो गया कि उसकी बेटी
कब उसके साथ गई, कब उठी, उसको ये पता ना था। सो एज इट इज दूसरी बेटी ने दूसरी रात यही फेल किया और दोनों हामला हुई और उनसे औलाद पैदा हुई। उनमें से एक का नाम जो था वो मोआब था और जिसने ये सारा मुल्क बसाया था, और दूसरी बेटी से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था इम्मी, जो बनी अमून का बाप है। सो इस वजह से इन दो बच्चों पर, दोनों बेटों पर, यानी जो लूत की औलाद थी उसकी बेटियों से, इन दोनों पर खुदा की तरफ से लानत थी। और जो नोमी ने फैसला किया वो कहां पर आई है? मोआब में। और कहां से निकली? बैतलहम से, यानी रोटी के घर से निकली। और कहां पर इसने बसेरा किया? लानत के मुल्क में। और इसका नुकसान उसने क्या उठाया कि इसका शौहर मर गया और इसके दोनों बेटे भी मर गए। एक फैसला नोमी ने किया कि वो बैतलहम से निकली, एक फैसला रूत ने किया कि वो उसने मोआब को छोड़ा और कहां गई? बैतलहम को। सो आगे कहानी बदल गई है। नोमी तो अपना सब कुछ गवा बैठी, लेकिन अगरचे रूत का हस्बैंड भी मर गया, लेकिन जब ये बैतलहम में पहुंची तो ये बॉयज के खेतों में बालियां चुनने के लिए जाना शुरू हुई और अपनी सास के लिए, उसके लिए एहतमाम करना शुरू हुई खाने पीने का। सो वहां पर बॉयज एक करैक्टर है जिसने रूत को देखा और उसने इसको पसंद किया और रूत का ब्याह बॉयज से हो गया। कहिए आमीन। और बॉयज से जब उसकी शादी हुई तो उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ओबेद था। कहिए हालेलुया। यानी बॉयज वो शख्स है, बॉयज वो करैक्टर है जिसका नाम निसब नामा के अंदर मौजूद है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ी बरकत की बात है, क्योंकि जो शरीयत है, जो कानून है, और जो जितने भी बाइबल के अंदर निसब नामे हैं, किसी निसब नामे के अंदर औरत का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप मत्ती की अंजील पढ़ें तो वहां पर दो औरतों का जिक्र मिलता है, एक राहब का और एक रूत का। कहिए हालेलुया। यानी इस औरत ने फैसला किया कि इसने मोआब से निकली, और मोआब के ऊपर क्या है? लानत है। और मोआब के लोग देवताओं को मानते हैं, पूजा करते हैं, बुत परस्ती करते हैं। इसने अपने बुत को छोड़ा, अपने देवता को छोड़ा, अपने कुंभे को छोड़ा, और ये इसने रोटी के घर का इंतखाब किया और इसको खुदा ने बरकत दी। मैं बता चुका हूं कि बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। और अगर आप रूत की किताब और उसके आखिरी बाब की आखिरी चंद आयात को देखें तो वहां पर भी निसबनामा है। और अगर आप मत्ती की अंजील उसके पहले बाब उसकी पहली आयत से भी देखें तो निसबनामा सेम है। और लिखा है कि अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से यकूब पैदा हुआ, और यकूब से यहूदा पैदा हुआ, और यहूदा से राम पैदा हुआ, अमीअमदाब पैदा हुआ, और उससे नहसून पैदा हुआ, और उससे सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बोइज पैदा हुआ, और बोइज से ओबेद पैदा हुआ, और बेद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ, और दाऊद बादशाह की नस्ल से मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। कहिए हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। मैं बता चुका हूं कि औरतों का नाम निसबनामे के अंदर नहीं है, लेकिन दो औरतों का नाम निसबनामे के अंदर है। जिससे रूत की शादी हुई है वो राहब का बेटा था, और जिससे ओबेद पैदा हुआ है वो रूत का बेटा है, और इसने दाऊद की नस्ल में शामिल हो गई, अब्राहम के निसबनामा में शामिल हो गई। ये खुदा ने इसको क्या दी है? बरकत दी है। और रोटी का मतलब मैंने बताया बैतलहम, और बैतलहम में कौन पैदा हुआ? खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जिंदगी की रोटी क्या हूं? मैं हूं, और जो इस रोटी में से लेता है वो कभी भूखा और प्यासा ना रहेगा। आप याद कीजिए उस आजमाइश को, जब खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया गया तो इब्लीस ने कहा कि फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या